سب سے بڑا مسئلہ بلوچستان کے لوگوں نے بے روزگاری بتایا ہے۔ 60% پلس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ بے روزگاری ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عطا طارر صاحب آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، ریاست نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے، آپ اپنی یہ ذمہ داری نبھائیں۔ یہ بیروز اگر کھلیں، اگر نہیں کھلتے ہیں تو ان کو پھر پورے پاکستان میں بند کر دینا۔ جہاں بزنس ہو رہا ہے وہاں تو چل رہا ہے، اگر یہاں بزنس نہیں ہے تو نہیں ہے۔ کہاں سے لے کر آئے میڈم؟ کہاں سے ان کے لیے بزنسز ڈھونڈیں؟ اگر آپ یہ اپنی حرکتیں کریں گے تو کم سے کم بلوچستان کے لوگ اس کو نیشنل میڈیا نہیں کہیں گے، پھر ہم یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ دس از ناٹ اے نیشنل میڈیا۔ بلوچستان کے بیروز بند کرنے سے کوئی نقصان میڈیا ہاؤسز کو نہیں ہوگا، یا پھر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ باقی میڈیا ہاؤسز بھی بند کر دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، خیر ہے، جہاں اتنے لاکھ لوگ بے روزگار ہیں یہ بھی بے روزگار ہو جائے، بند کر دے جیو کو بھی، بند کر دے ایئر وائی کو، بند کر دے باقیوں کو بھی۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کرنے پہ مجبور کر دیں گے۔ شکریہ۔ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب نے اپنی اسپیچ کی، لیڈر آف دا اپوزیشن نے، جب میں کنکلوڈ کروں گا تو اس وقت میں جن چیزوں کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ بلوچستان کے لوگوں کو حقائق سے آگاہ کیا جا سکے۔ یہ جو میڈیا کا ایشو ہے میڈم اسپیکر، دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم۔ اس سے پہلے بھی میڈیا ہاؤسز جو ہیں، ایک تو پہلے سب سے پہلے تو لیٹس آل آف اس اپریشیٹ دا ایفرٹس آف میڈیا آف بلوچستان کہ وہ ان مشکل حالات میں یہاں پر جرنلزم کر رہے ہیں۔ یہاں پر جرنلزم کرنا آسان کام نہیں ہے میڈم اسپیکر۔ یہاں پر جہاں پر ایک سیریس قسم کی جس کو کہتے ہیں کہ گروپس بھرے ہوئے ہیں، جو انسرجنٹس ہیں، سیپریسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف ظاہر حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ ان کو گلرفائی نہ کیا جائے، یہ قانون ہے۔ تو اس بیچ میں یہ بہت مشکل سے اپنی جو ہے وہ جرنلزم کر رہے ہیں۔ اس کی اپریسیشن کے بعد لاسٹ ٹائم جب یہ ایشو اٹھا تھا کہ ان کے بیروز ہیں، ان بیروز کو بند کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میڈم اسپیکر کہ ایک ایسا شخص، کل مجھے معلوم ہوا کہ اس کی والدہ فالج کی مریضہ ہیں اور وہ بیڈ ریڈن ہیں، اور ان کی مسز جو ہے وہ بھی بیڈ ریڈن ہیں، اور وہ ایک عام سا ورکر ہے، اور اس کو ایک دن پہلے ٹیلی فون کر کے کہا گیا ہے کہ کل آپ جو ہے آفس نہیں آئیں گے، آپ فارغ ہیں۔ بلوچستان جو ہے وہ وی آر 43% آف پاکستان۔ ہماری وائسز پازیٹیو تو نہ صحیح لیکن نیگیٹو تو کم سے کم اسلام آباد تک پہنچ رہی ہے نا، اس کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں۔ جب پچھلی بار یہ ایشو آیا تھا تو میں نے فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن جناب عطا طارر صاحب سے بات کی، اور آج بھی میں اس پورے فلور کے توسط سے، چاہے وہ اپوزیشن کے دوست ہوں چاہے وہ حکومت کے دوست ہوں، اس زیادتی کو بلوچستان کے ساتھ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے جناب طارر صاحب میرے سے وعدہ کیا تھا، آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ بلوچستان کے بیروز بند نہیں ہوں گے۔ کوئی نیشنل اوبلیگیشن بھی کوئی چیز ہے میڈم اسپیکر؟ وی انڈرسٹینڈ کہ آپ کو یہاں سے بزنس نہیں ملتا، وی انڈرسٹینڈ کہ آپ یہاں سے بزنس نہیں کر رہے، تو باقی پاکستان سے تو کر رہے ہیں نا، تو کیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ یہ پاکستان کا مضبوط ترین حصہ ہے۔ بلوچستان کے بغیر پاکستان کچھ نہیں، پاکستان کے بغیر بلوچستان کچھ نہیں۔ تو آج اگر بیروز کو اس طرح بند کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی وائس کو دبانا چاہتے ہیں کہ جو بلوچستان کے حقائق کو پاکستان سے آگاہ کرے، چاہے پازیٹیو چاہے نیگیٹو، اس پہ دوبارہ ڈبیٹ کی جا سکتی ہے، چاہے پرسیپشن چاہے ریئلٹیز، اس پہ دوبارہ ڈبیٹ کی جا سکتی ہے۔ لیکن میں یاد دلانا چاہتا ہوں آنریبل منسٹر کو، پھر یہاں پر جو آنریبل وردی سیکرٹری انفارمیشن آئی تھی، خاتون تھی، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، کسی دوست کو اس کا نام یاد ہے تو مجھے یاد دلائیں، انہوں نے مجھ سے بھری محفل میں یہ پرومس کیا تھا کہ ہم بلوچستان کا ایک بیرو بھی بند نہیں کریں گے۔ آج بلوچستان کے لوگوں کو روزگار کی ضرورت ہے میڈم اسپیکر، وہ روزگار گورنمنٹ آف بلوچستان نے اکیلے نہیں دینی ہے، یہ آج تمام، ہم کہتے ہیں میڈیا چوتھا پلر ہے ریاست کا، کیا میڈیا کے یہ رویہ ہوگا بلوچستان کے ساتھ؟ یہ مالکان وہاں پر اربوں روپے کما رہے ہیں، اور یہاں پر جو غریب ہمارا رپورٹر ہے اس کو 8,000 روپے تنخواہ، 10,000 روپے تنخواہ، اور اسی طرح پرنٹ میڈیا کا یہی حال ہے کہ ان کے ڈیسک پہ وہ لوگ جو رپورٹرز نہیں ہیں۔ یہ کس طرح نظام چلے گا؟ تو میں اس تمام ہال کی توسط سے ایک بار پھر اس میڈیا کے ذریعے، اسی میڈیا کے ذریعے
जनाब अता तारड़ साहब, आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान को आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। आपने जो वादा इस सूबे के वज़ीर आला के साथ किया था, खुदारा उस वादे को पूरा कर दे। अगर उस वादे को आप पूरा नहीं करेंगे तो कम से कम ये ऑगस्ट हाउस सारे का सारा मीडिया के साथ खड़ा होगा, अपने इन दोस्तों के साथ खड़ा होगा। और अगर क्यों इस नौबत पे लेकर आते हैं कि लोग यहाँ से उठें और इस्लामाबाद में आपका एक चीफ मिनिस्टर धरना दिए बैठा हो? क्यों लोगों को उस नहज पे लेकर आते हैं कि इस पूरा हॉल, चाहे अपोजिशन है चाहे हुकूमत है, वो इस्लामाबाद की तरफ जाए और वहाँ पर धरना दे के बैठे? हम क्या कह रहे हैं कि बहरोज़ बंद ना करें? क्या फ़र्क पड़ेगा एक मीडिया हाउस को? कोई महीने का कितना खर्चा है मैडम स्पीकर? 10 लाख 15 लाख, इससे ज़्यादा नहीं है। अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। नेशनल ऑब्लिगेशन बनता है कि आप बलूचिस्तान में अगर बिजनेस नहीं भी है तो लेकिन बलूचिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में आपके शामिल है कि आप ये बहरोज़ को बंद नहीं करें। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के अता तारड़ साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है, रियासत ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, आप अपनी ये जिम्मेदारी निभाएं। एक भी बहरो अगर बंद होगा बलूचिस्तान का तो बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान की असम्बली, चाहे वो अपोजिशन से हो चाहे वो हुकूमत से हो, वो अपने बहरोज़ के साथ खड़े होंगे। और ये मजाक करना बंद कर दे बलूचिस्तान के साथ। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ इस मीडिया के ज़रिए आपके साथ कि आप वादे के पक्के आदमी थे, आप एक ख़ानदानी आदमी हैं। आपके ख़ानदान ने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स आज से नहीं पिछली कई दहाइयों से करते आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज़्ज़त से नवाजा है। बलूचिस्तान को उसी निगाह से देखें जिस निगाह से आप पंजाब को देखते हैं, जिस निगाह से आप KPK को देखते हैं, जिस निगाह से आप सिंध को देखते हैं या फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद को देखती है। बलूचिस्तान के बहरोज़ बंद करने से कोई नुकसान इन मीडिया हाउसेस को नहीं होगा। या फिर ये फैसला कर लेते हैं कि बाकी मीडिया हाउसेस भी बंद कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, खैर है, जहाँ इतने लाख लोग बेरोज़गार हैं ये भी बेरोज़गार हो जाए। बंद कर दे जियो को भी, बंद कर दे एयरवाई को, बंद कर दे बाकियों को भी। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हमें करने पे मजबूर कर देंगे। या तो फिर ये सारे बहरोज़ खुलने चाहिए। ये गरीब लोग, ये रिपोर्टर, ये उसका जो एडिटर है या इसके जो जितने मुलाजमीन हैं, किधर जाएंगे मैडम स्पीकर? कहाँ से अपने बच्चों के ब्रेड का बंदोबस्त करेंगे? कहाँ से अपने बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करेंगे? बेरोज़गारी का जिन, हमने अभी एक सर्वे कराया है, एक इंडिपेंडेंट सर्वे, सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान का जो मसला है, जो बलूचिस्तान के लोगों ने उस सर्वे के ज़रिए बताया है, वो मैडम स्पीकर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। गो के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। क्यों हम कबूतर की तरह आंखें बंद करने के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक है? दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, नहीं है सही। उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है हुकूमत, ठीक करने की कोशिश कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस ठीक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा मसला बलूचिस्तान के लोगों ने बेरोज़गारी बताया है। 60% प्लस लोग ये समझते हैं कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला वो बेरोज़गारी है। तो क्या उसमें ऐड ऑन करें हम? उसको तो कम करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को कोशिश करनी चाहिए। हम उसको बंद करने की तरफ जा रहे हैं। ये इंतहाई जुल्म है और ये जुल्म होने नहीं देंगे हम इंशाअल्लाह ताला। मैं वादा करता हूँ कि मेरी ज़ात भी और ये ऑगस्ट हाउस भी, मुझे यकीन है कि इनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जो इस बात पे कायल नहीं होगा कि हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। आपकी आवाज़ आज के दिन आपके तवस्सुत से पूरा पाकिस्तान सुन रहा होगा। अगर नहीं सुनेगा तो मेरा वादा है कि मैं आज इस टेलीफोन के ज़रिए आपकी वॉइसेस, जो भी लोग हैं, वज़ीर आज़म तक मुझे अगर बात करनी पड़ेगी तो मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से इस बारे में बात करूंगा कि ये बहरोज़ अगर खुले, अगर नहीं खुलते हैं तो इनको फिर पूरे पाकिस्तान में बंद कर देना। जहाँ बिजनेस हो रहा है वहाँ तो चल रहा है, अगर यहाँ बिजनेस नहीं है तो नहीं है। कहाँ से लेकर आए मैडम? कहाँ से इनके लिए बिजनेसेस ढूंढे? ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शलाइज्ड हो चुके हैं नेशनल चैनल। फिर एटलीस्ट इनको नेशनल मीडिया तो ना कहें। अगर आप बहरोज़ बंद करेंगे तो डोंट कॉल देम नेशनल मीडिया। मेरी पूरे पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि डोंट कॉल देम नेशनल मीडिया। दिस इज नॉट अ नेशनल मीडिया। अगर इट इज अ नेशनल मीडिया तो ऑल बहरोज़ शुड बी ओपन हेयर इन क्वेटा, इन तुर्बत, इन ऑल डिविजनल हेडक्वार्टर्स। हम डिविजनल हेडक्वार्टर्स की बात कर रहे हैं, क्वेटा में बंद कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ नेशनल मीडिया। अगर नेशनल मीडिया इसको साबित करना है तो इनको बहरोज़ खोलने पड़ेंगे। हम आपको जनाब, जितने मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट यकीनन सुन रहे होंगे, आज भी मीडिया को हमने चैनल बनाया है कि अता तारड़ को आवाज़ पहुंचाने के लिए मीडिया हमारा चैनल है।
तो मीडिया के तौसत से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने वादा किया था, अपना वादा निभाएं, अपने वादे पे पूरा उतरें। ये सुनो टीवी ख़ास तौर पे आज कल में वो बंद हो गया है, इससे पहले 2-4 और बंद हो गए। ये सारे चैनल्स को दोबारा खुलना चाहिए। और मोहसिन नकवी साहब, मैं आपसे भी ख़ास तौर पे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी आपसे इस टॉपिक पे बात हुई है। आप वो फेडरल वज़ीर हैं, आप वो फेडरल मिनिस्टर हैं, जब बलूचिस्तान का कोई इशू है आप सबसे पहले बलूचिस्तान में आपने कदम रखा है। हम बलूचिस्तान के लोग आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मेरी आपसे इस टॉपिक पे बात हुई और आपने मुझसे वादा किया था, आपके अपने चैनल का इधर बैरो बंद हुआ है, आपने वादा किया था कि मैं उसको खोलूँगा। वो खुला है शायद या नहीं खुला? तो मोहसिन नकवी साहब, आप मेरे भाई भी हैं, आप मेरे दोस्त भी हैं। आप बलूचिस्तान के दर्द को समझते हुए, जब बलूचिस्तान दर्द में हुए, पहले फेडरल मिनिस्टर आप हैं जो ये आप तशरीफ़ लाए। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आज कम से कम आपके चैनल का बैरो तो आज इस असम्बली के सेशन ख़त्म होने से पहले खुल जाना चाहिए। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं तो मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दूंगा। आपका बैरो तो आज खुलना चाहिए और बाकी बैरोज भी खुलने चाहिए। हम तमाम ऑगस्ट हाउस या तमाम ऑगस्ट हाउस के जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं, हम बलूचिस्तान की मीडिया के साथ थे, मीडिया के साथ हैं और मीडिया के साथ रहेंगे। और हम ये समझते हैं कि ये नेशनल मीडिया है। अगर आप ये अपनी हरकतें करेंगे तो कम से कम बलूचिस्तान के लोग इसको नेशनल मीडिया नहीं कहेंगे, फिर हम ये कहने पे मजबूर होंगे कि दिस इज़ नॉट अ नेशनल मीडिया। तो हम एक बार फिर इस यकीन के साथ कि हुकूमत आपके साथ है, आपकी अपोजिशन आपके साथ है, बलूचिस्तान के लोग आपके साथ हैं, हर फोरम पे हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि ये जिस तरह जो बजट में जो कुछ हुआ है, मैडम स्पीकर, ऑनरेबल मेंबर को पता है, जो ऑनरेबल मेंबर PND है, और चीफ सेक्रेटरी साहब को पता है, शायद अपोजिशन के कुछ दोस्तों को पता हो कि हमने बलूचिस्तान के राइट्स के लिए फर्मली हम वहाँ पर खड़े हो गए। अगर वो सिचुएशन ना होती, वो सिचुएशन अगर जो पहले थी, अगर उस तरह सिचुएशन हुई थी जो पंजाब के साथ हुआ, जो सिंध के साथ हुआ, तो 9 बिलियन रुपीज़ का बजट था आपके लिए, 9 अरब रुपए आपके लिए बच रहे थे। हमने फर्मली बट पोलाइटली, और मैं इसहाक डार साहब का खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि लास्ट मोमेंट पे एटलीस्ट उन्होंने हमारा साथ दिया। लास्ट मोमेंट पे एटलीस्ट जब हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, हमने फैसला कर लिया था कि मैंने इसी में नहीं जाएंगे। मैं अपने बजट के एंड में ये सारी बातें आपके सामने रखूँगा, लेकिन वो जो मैं कहता हूँ ना कि हम बलूचिस्तान के राइट्स के लिए बिल्कुल फर्म बट पोलाइट, वी विल रिमेन फर्म बट पोलाइटली हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे और मुझे यकीन है कि हमारी बात सुनी जाएगी। शुक्रिया मैडम स्पीकर।